You are costing your health. Do you know what you're doing to yourself? Seriously? तो मुझे वो सुन के मुझे लगा कि बख्श मेरे को लगता है कुछ हुआ ही है मेरे को. Still, you know, I am not coffee, so I cannot make everyone happy. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है. इट कैन बी गॉट बाय यूजिंग अ शेयर्ड प्लेस ऑल्सो, जैसे स्विमिंग पूल है या जैसे शावरिंग प्लेसेस हैं, तो ये हो जाता है. और कैसे कैसे सवाल है. अब बताएं. Hi everyone, I'm Aisha Sheikh. Welcome to my podcast Chai Shai with Aisha, powered by Proka Studio Dubai in association with AMG Digitech Solution, your one-stop solution for your printing, designing and digital marketing needs. And special thanks to our travel partner Takeoff Tours. Great. Today I have a very gorgeous gynecologist. Wow. At first I was like, ये gynec है? इतनी young mashallah, and the very amazing Dr. Sana in the house. Yay! तालियां हम Thank दोनों ही you so बजाएंगे. much. Thank you so much. And the feeling is mutual. You are as amazing as I see you on TV. You on should be your- a model as well. Okay, inshallah. I'll So try. do you have kids? Yeah, I have 2 daughters, alhamdulillah. They are 13 and 14 years. What's the beauty का secret फिर? Be pure at heart, be truthful, be happy, see the good in everything. I am so surprised कि आपके पास teenagers भी हैं. माशाल्लाह, still you maintain yourself so beautiful. इतनी खूबसूरत डॉक्टर. आप जाते हो ऐसे ही क्लिनिक को? हाँ, पेशेंट ऐसे ही बेहोश जाते नहीं हैं. होते आपको देख के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते बेहोश. मतलब लाइक वो इसलिए नहीं जाते कि वो बेहोश हो जाए, इसलिए जाते कि वो होश में आए. बिकॉज वो यूजुअली मैंने देखा नहीं इतने टक के सच धज के रहते. बिकॉज बीइंग प्रेजेंटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर टीचर्स या आपके लिए, सबके लिए. Yes, बट being सब लोग नहीं presentable. करते. No, it's very important because how you present yourself is the first step when you meet someone. Presentation पे ही देखेगा, उसके बाद the conversation can go in 2 ways. Yeah. Either it can be amazing, you can add value by your experience, by your knowledge, by your professionalism, और वो फिर end हो जाएगा and then they will only see you, they will not take you in seriousness. Actually. So presentation is important, but of course it goes with the other things. ना. So besides your mother, is there anyone else who motivated you? My husband. ना. Of course, I mean, I was a doctor already when we got married. So, but yeah, he has always been my driving force and he has helped me throughout. Still today, he's always by my side. If I mess up, I know that who's the go-to person. Partner in crime. Partner in crime, yeah. He's I can very, say very that good. because people like us who are doing so well, I think it is mostly because of our husbands. Yes, Supportive absolutely. husbands. If you don't have the support of your garwalas, then गई भैंस पानी में. yeah, absolutely. Okay. So what is one wow thing about being a gynecologist? The wow factor of being a gynecologist, I think for me, is when my patient leaves my office well informed and she feels that yes, I have to come back because I will get more information from here and she'll be healthy and she'll be happy. Yeah. And when I was doing gynecology, I just saw that patients were not listened to as much. We all experience, even as doctors, we go to other doctors. So it is great when the doctor listens to you. So when you are listened and you are heard, then of course the आधी बीमारी तो वहीं चली जाती है. हाँ ना. And You know, मेरे को gynecologist से बिल्कुल नहीं बनता था. I had so many different versions. I have seen the scarier ones as well. मेरे को दुबई वालों ने काफी डरा के रखा था. And literally भाव ही नहीं दे रहे थे वो. नहीं, gynecologist or any other doctor, they should be approachable, especially gynecs, because see, the patients are coming with very personal issues. Yeah. So we should be approachable and we should make them comfortable. So I'm a good listener. I know that. I have spoken to you earlier as well and I was like, damn, ये कहाँ थी 1 साल पहले? Because इतना मेरे साथ बहुत मसले हुए थे and I was looking for a good doctor around and 3 of them, literally I had the toughest time with them, dealing I'm with so them. sorry. Because they were not listening to me. Okay, move on. ऐसे बात कर रहे थे वो लोग literally. God. Why are you talking about that? Tell me this now first. What are you doing? मैं बोली क्या मुझे मारे जैसा फर्स्ट टाइम आई वाज फीलिंग कि मैं क्लास में बैठी हूँ. स्ट्रिक्ट टीचर्स नहीं होते हैं वैसे वाला. बोली बख्श मेरे को नहीं जाना है.
फिर फाइनली क्या हुआ था, देयर वाज अ मेडिकेशन दैट दे हैड गिवन टू मी एंड वो मेरे को समझ नहीं आया था कि कंसिस्टेंटली लेना है, एंड आई एम अ पर्सन जो मेडिकेशन को आदत नहीं है और मैंने सही से लिया नहीं, सो मेरे को ट्रिगर कर गया। ओके। तो अभी ऐसा लगा था कि मैं मरने वाली हूँ आजकल में टाइप्स में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो पीसीओएस से रिलेटेड थे, एंड यू नो जो ओसीपीज वगैरह देते हैं, यू हैव टू हैव दैट ना डेली, मिस करेंगे तो फिर बाद में ब्लीडिंग तो हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, खड़े खड़े हो रही थी मुझे सारी, तो मैं इंडिया चली गई भाग के इमरजेंसी पे टिकट बुक करके, वहाँ डॉक्टर ने बोला आपको कुछ है ही नहीं, आप मेडिकेशन बराबर लो, सिर्फ ये लाइन बोलना था यहाँ पे, एंड दे वर लाइक यू आर कॉस्टिंग योर हेल्थ, डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। सीरियसली? तो मुझे वो सुन के मुझे लगा कि बख्श मेरे को लगता है कुछ हुआ ही है मेरे को। आई थिंक मैंने बोला कि मेरा विल भी लगा देती हूँ मैं AES का। इट वाज लाइक दैट। So when I met Dr. Rajul, I mean, she's also approachable, and you तो माशाल्लाह you are तो all the more approachable. तो मुझे इतना अच्छा लगा कि I was like बख्श ऐसे डॉक्टर्स मेरे को पहले मिलते तो कितना अच्छा होता। हाँ, हर तरह के लोग हर फील्ड में आपको मिलेंगे, but you know you are setting an inspiration, and after this podcast I'm sure many more gynecologists will be like यार next podcast में आयशा हमें बुला के ऐसे ही बोले। इंशाल्लाह। ओके, सो ये आपने तो वाउ फैक्टर्स जो बोले थे, बिसाइड्स दैट व्हाट आर द challenges that you basically face as a gynecologist? So see, patients when they come to me, they are very doubtful about whatever they are facing. Right. And they have been to many doctors before coming to someone else. Before me, they must have gone to 3-4 others. After me, they will again go to 3-4 others. Some of them, not all. So of course, just convincing the patient that क्या बीमारी है and क्या इसका इलाज हो सकता है, guiding them in the right path is what I want to do and what I do. So that I think that is it. When the patient is convinced by you, and she'll keep on coming back. Even when she's healthy, she'll just pass by to say hi. Hi. If she has delivered, I've seen her through all her antenatal, she'll come with her baby. So that is a joy every time. Like every time a baby is born, the same kind of excitement, you know, same kind of excitement you see, I see in myself. So I'm so happy that I am able to do all this. Okay, so only challenge is like convincing the patient. Yes, for me, yes, it is convincing the patient, being approachable and listening to what she has to say. That is very important for you. बिकॉज ट्रीटमेंट तो सारे डॉक्टर्स को, जो गायनेकोलॉजिस्ट बैठे या और डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि ये दवा लिखनी है, लेकिन वो पेशेंट वो लेगा दवा के बाहर निकल के फिर कहेगा कि शुड आई बाय दिस और नॉट, और शुड आई जस्ट गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन. सो you don't have to make your patient so insecure that she has to go to for a second opinion. आई डाउट कि आपके पास जाके भी कहीं और वो लोग यू नो ओपिनियन लेते होंगे. पता नहीं लेते होंगे जरूर. Because only when a doctor is not approachable, I believe patients end up taking that kind of step. And you're not, when you're not listened. Yes, but still, you know, I am not coffee, so I cannot make everyone happy. Okay, that's being a little bit more honest. Now when you spoke about the delivery part, pregnancy वाला जो है, pregnancy तक भी फिर भी सुन लेंगे. जब वो डिलीवरी का रूम होता है, you know, I've given tough time to my doctors. मैंने उनको बोला मेरा C-section कर दो, जबकि वो डॉक्टर्स वाला एक तेरा तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, तुम रुको वहाँ पे. 24 hours in labor pain. And I was yelling on top of my voice. Yes, मेरी फैमिली पूरी रो रही है, मतलब करके रात के 2-3 बजे वहाँ पे चीखी, मतलब पूरे हॉस्पिटल को हिला के रख दिया था मैंने. Any kind of that incident like you had to face in your आए दिन होता रहता है. मारते हैं पकड़ के आपको? नहीं मारते नहीं है, लेकिन स्पेशली लाइक आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया. तो वहाँ तो लाइक आप के लेबर रूम में एटलीस्ट 10-12 बेड्स हैं और सब पे है वो जो डिलीवर करेंगी. कभी एक कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, तो वो होता रहता है. और देयर आर अदर्स, जूनियर्स, सीनियर्स, नर्सेस, एवरीबडी, बट दैट इज हैपनिंग. तो आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग देयर. यस, अगर आप अपने जैसे 4-5 और जो आप अपना बता रहे हो उसे अगर आप सोच लो तो बहुत सारे होते हैं. एंड देन देयर आर अदर, मतलब कोई बहुत सेंसिटिव होगा, कोई रो ही रहा होगा, कोई बोलेगा मुझे किसी को बुला के दो, या मुझे जाना है, या अदर अलग अलग तरह की बातें चल रही होती हैं. बट अब क्या करे, वो होता है उनका. दे आर गोइंग थ्रू
a phase, और वो it is a painful phase, you know, it is the most painful phase उसके बाद of a में जो woman. गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, यार क्या ही कर दिया मैंने लेबर रूम में। नहीं, उसमें गिल्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप कर सकते हो. From my side, you have the liberty to do it. टेरिबल विद द डॉक्टर एंड द नर्सेस कि जब तक वो थोड़ी देर पहले तक भी मेरे पास अच्छे थे, एंड सडनली लेबर रूम में दे ऑल्सो वर लाइक पिस्ड ऑफ विद मी कि कर क्या रही है। माँ बोली यू बेटर डू अ सी सेक्शन और एल्स आई जंप फ्रॉम द बेड। मेरी मम्मियाँ काट दो उसका पेट, काट दो उसको, बच्चा निकाल दो, लाइक दैट हुआ था वहाँ पे सीन। एंड बाद में मैंने जाके अपोलोजाइज किया डॉक्टर्स को, आई सेड इट वाज नॉट इन माय हैंड, एंड दे वाज जस्ट लाइक यू कि बोला नहीं वी अंडरस्टैंड हाउ इट इज करके। तो बट इट इज लाइक मेरे को अभी भी गूज बम्स आते हैं, मैंने कैसे किया वो बहुत अनबेरेबल होता है, ऑफ कोर्स. So you did face those kind of situations. of course. So आपको कभी ऐसा नहीं हुआ ऐसा कि यार ये क्या ही हो गया था, I cannot tolerate this करके? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ. होते तो अभी आप तक नहीं होते गायनेकोलॉजी में. And okay, has it ever happened to you that your patients were way too comfortable with you? Yes. Always. That has happened so many times. मतलब फिर तो वो दोस्ताना माहौल हो जाता है वहाँ पे, फिर अपने घरेलू बातें भी शुरू हो जाती हैं, और घर सब ससुराल की बुराई शुरू हो जाती है. So but enjoy करो उसको भी. At least you are making but the patient they are happy. like feeling so assured that you are there to listen. You will not judge them. Yes, no, that is when a person opens I up. don't judge, yeah. तभी वो ओपन अप करके बात करते हैं. सो आई एम श्योर योर पेशेंट्स आर वेरी लकी टू हैव यू. ये बताएं मेरे को, लाइक व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर यंग वुमेन अबाउट मेंटेनिंग देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ? Yeah, this is very important actually, because the young females, they should talk about this gynecological problems more. They shouldn't be embarrassed, and they should come forward and tell their parents, or come to the doctor yourself. Yeah. Okay, because देखो बहुत सारी, there are so many things we have to be aware of, because we are living in a world now where there is so much of stress. The food we eat is all gadbad, and of course the like this environmental changes and all. So they are facing problems like PCOD, PCOS, and so many other things, HPV infections. तो वो उनको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये हमको टेस्ट्स कराने पड़ते होंगे, या हमको ये वैक्सीन लेना चाहिए, या हमको एक बार जाके बस देखना है. ज़रूरी नहीं है दैट एनी टाइम यू आर विजिटिंग अ गायनिक तो हम आपका एग्जामिनेशन ही करेंगे. नो, नॉट एट ऑल. यू कैन कम एंड टॉक, यू कैन पुट योर क्वेरीज के आई हैव हर्ड कि ये इन्फेक्शन होता है, तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज यू नो द सोसाइटी इज सो ओपन नाउ डेज, वेयर गर्ल्स आर इन अ रिलेशनशिप, and of course they are facing so many problems. तो इंस्टेड कि हम उसको ओवर द काउंटर दवा ले लेके खाते रहें और अपना ही नुकसान करते रहें, बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे एक्सपर्ट सलाह लें कि हम क्या कर सकते हैं. और उसमें ना जैसे इवन मी एज अ टीनेजर आई यूज्ड टू हैव दिस इश्यू ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, द फर्स्ट थिंग, प्लस वो जो क्रैम्प्स, माय गॉड, आई वाज लाइक यू नो फर्स्ट 2-3 दिन जो होते थे एकदम बहुत ही भयानक से होते थे मेरे. सो इज इट कॉमन इन टीनेजर्स? इट इज़ वेरी कॉमन. इट इज़ वेरी कॉमन. आपके डिस्मेनोरिया होता है, लेकिन अभी ये अगर आउट ऑफ हैंड है कि आपकी डेली रूटीन इससे अफेक्ट हो रही है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग्स हैं, या आपको उसके साथ में बहुत सिवियर हेडेक्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपका बिल्कुल आउट ऑफ हैंड जा रहे हैं सारे सिम्टम्स, यू हैव टू विजिट द डॉक्टर. मे बी इट्स नॉर्मल, बट एटलीस्ट एक बार चेकअप तो करा लो ना. उसको अपने अंदर ही अंदर भुगतने से क्या फायदा है. यू नो आई यूज्ड टू टेक देयर वाज अ टैबलेट कॉल्ड मेफ्टाल स्पास, इफ यू नो इट. इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया. तो हाँ, वो मेरे को दे दिया था, तो आई यूज्ड टू टेक दैट फॉर इयर्स, टू अ पॉइंट कि आई गॉट इम्यून टू इट नाउ. तो मेरे को काम ही नहीं करने लगा मेरे ऊपर. सो इज इट एडवाइजेबल टू टेक दैट टैबलेट? मेफ्टाल स्पास यू कैन टेक ऑफ एंड ऑन, बट हाँ इतना नहीं कि आप एडिक्ट हो जाओ उसके. पेन किलर्स की एडिक्शन बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन है ना. वेरी कॉमन. ओके. और जब ऐसे हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स हो या फिर ऐसे क्रैम्प्स होते हैं, एनी कोई सजेशन जो आप यंग वुमेन को देना चाहते हैं कि एटलीस्ट डू दिस, यू विल गेट सम रिलीफ? हाँ देखो, अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं आपके, तो आपको उसको सबसे पहले देखना है कि ये इरेगुलरिटी कैसे चल रही है. ओके. कि अगर जैसे जब पीरियड शुरू होते हैं बच्चियों के, तो वो कम से कम 3 years लेता है नॉर्मल होने में, बिकॉज देयर आर हार्मोनल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडी. तो बॉडी हैज़ टू एक्सेप्ट ऑल दैट,
एंड देन इट कम्स इन अ फ्लो. अगर उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, आपके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं, आपको उसके साथ कभी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कभी कम हो रही है और बहुत सिवियर आपको पेन हो रहा है, obviously you have to visit the doctor. Okay. In between what you can do is जो normal आप कर सकते हो, you can maintain a healthy lifestyle, जिसका मतलब है कि आप अपना खाने पे ध्यान दो कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल. प्लस अपना एक रूटीन रखो, कोई कुछ फिजिकल एक्टिविटी का. Okay. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो. इट फिजिकल एक्टिविटी डजंट मीन दैट यू हैव टू जॉइन द जिम एंड देन यू हैव टू डू ऑल दोज strength trainings and cardio and all that. No, it can also be just a simple walk. Okay. But walk भी ये नहीं कि आप स्ट्रोल करते हुए जा रहे हो, कॉफ़ी पीते हुए और आइसक्रीम खाते हुए वापस आ रहे हो. नहीं, यू हैव टू टेक अ ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, दैट्स इट. जाओ वापस आ जाओ. तो ये हेल्दी हैबिट्स अगर आप मेंटेन रखोगे तो बहुत केसेस में ये सब अपने आप कम होता रहता है. कम हो जाता बट इसका इट डजंट मीन कि जब आपको शुरू हो क्रैम्प्स तभी आप एक्सरसाइज करने पहुंच जाओ. नहीं, यू हैव टू मेंटेन इट थ्रू आउट ना. आई रिमेंबर दिस माई कॉलेज टाइम में मेरी लेक्चरर बोलती थी व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट, मेरे को पूरी क्लास को पता चल जाता था बिकॉज आई वाज लाइक तो माय टीचर, कैन यू गो आउट फॉर अ वॉक एंड कम, बिकॉज ऑल ऑफ दिस आई हैव रियली एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ एंड यू आर लाइक अ हॉट टॉपिक. व्हाटएवर आई एम आस्किंग यू इज समथिंग दैट you has have already experienced. आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. तो दिस इज समथिंग कॉमन. आई यूज्ड टू फील गुड आफ्टर दैट. हाँ, और ऑल्सो वो हॉट वाटर बॉटल्स जैसे आपके Yes. मदर्स देते हैं ना, वो Yes. दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. And what is the average age to get periods for women? पीरियड्स होना चाहिए अराउंड 12-13 ईयर्स, लेकिन बहुत बच्चों के बहुत पहले शुरू हो जाते हैं. तो अगर वो 8 ईयर्स तक शुरू हो रहे हैं देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत अदर इश्यूज भी हो सकते हैं उसके साथ. 8 or 9 years, I was like, यस, I can't बिकॉज सी उसमें क्या होता है कि हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो, लेकिन उसके अलावा बच्चा का साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट होता है ना, कि स्कूल में और आसपास के. Isn't it common nowadays? 9 years, 8 years, 10 years. Because of this food habits, especially, and the stress. So, what are some of the myths surrounding pregnancy and menstrual health that you would like to debunk? ओके. मिथ्स तो बहुत सारे हैं प्रेगनेंसी में. एक तो ये है कि भाई लोग दिखाने ही नहीं जाते हैं कि अभी तो ठीक चल रहा है, जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब बताएंगे, वरना नज़र लग जाएगी. तो We have gone through that. हाँ, नहीं वो होता है भाई, बड़े लोग कहते हैं होता होगा. तो फिर एक तो वो है, तो चलो आप बताओ नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाओ ज़रूर. उसके बाद ये सोचते हैं कि बस जैसे ही प्रेग्नेंट हो गए हैं तो बस आप खाना शुरू कर दो. जितना खाओगे उतना अच्छा बच्चा पैदा होगा. तो ऐसा नहीं होता है कि पहले 3 months में कुछ भी आपको इतना अपने आप को फोर्स नहीं करना है खाने के लिए. नॉर्मल खाओ जो भी खाना है. ना ही प्रेगनेंसी में हम बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करो. अगर आप एक हेल्दी वेट से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 200, 250, 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा डाल दो, जो कि बहुत मिनिमल होती हैं. तो ये है. उसके बाद क्या होता है, हाँ, कि अल्ट्रासाउंड के लिए भी बहुत परेशान होते हैं डॉक्टर, कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को इफेक्ट होता है, या फिर वो जो हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं कि उससे तो फिर बच्चा ख़त्म ही हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, इस तरह से सोचते हैं लोग. तो ये भी मिथ है. बच्चे को हमको देखना है ना, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो हम शुरुआत में इसीलिए देखते हैं कि भाई हमें उसकी हार्ट बीट दिख जाए, या हमको उसको ग्रोथ का पता चले और एक एग्जैक्ट डेट पता चले, कि उस डेट से हम कैलकुलेट करते हैं कि डिलीवरी टाइम क्या होगा. तो ये सब में से अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं होता है. ऑफ कोर्स आप रोज़ रोज़ नहीं कराना है अल्ट्रासाउंड, लेकिन जब भी आप मंथली चेकअप्स के लिए जाते हो तो अल्ट्रासाउंड कराओ. और जो TVS अल्ट्रासाउंड होता है उससे कोई परेशानी नहीं होती है, कोई अबॉर्शन नहीं होता है. वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको आराम से कराइए और अपने बेबी को देख के आपको खुशी होगी. ओके. और ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में कोई मिथ्स हैं? मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में मिथ्स तो वही पुराने टाइप की हमें मालूम है. आजकल तो लोग इसके बारे में इतना मिथ्स रखते नहीं है कि भाई बाहर नहीं जाना है, या ये नहीं. आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. Really? हाँ. लेकिन माई मॉम बिकॉज वो फॉलो नहीं करती थी, लेकिन मेरे कजन सारे ना वो 9 days एक कोने में बैठे रहते थे घर पे, और उनका बिस्तर भी अलग होता था, वो बेड पे नहीं सोते थे. सो हाँ. एंड लाइक मेरी जो बैकग्राउंड है, वी ऑल कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन मेरा फिर भी डिसेंट था एक हद तक,
ये प्रॉपर गांव में, अच्छा, एंड दे डिडंट हैव पैड्स एज वेल, सो दे यूज्ड टू यूज दोस क्लॉथ्स एंड ऑल दैट स्टफ. अच्छा तो ऐसे वाला इसमें था. तो अभी आई डोंट थिंक सो ऐसे कुछ होता है वहाँ पे. नहीं अब तो नहीं होता है. अब तो पीपल आर वेरी ओपन, और जो ओपन भी नहीं है तो उनको सोशल मीडिया सब कुछ सिखा देता है ना. सोशल मीडिया टीचर बन गया आजकल. हाँ, अच्छा भी है बुरा भी है. यस. ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, सो व्हाई डू यू थिंक देयर इज स्टिल अ स्टिग्मा अबाउट डिस्कसिंग सर्टेन विमेन्स हेल्थ इशू ओपनली? Stigma, yeah, it is a stigma because it comes from the home. जो आपका होम में कैसे आपका माहौल है ना, वो वहाँ से आपको स्टिग्मा लगता है. दैट व्हेन द लेडीज, अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट कि व्हेन द लेडीज आर नॉट हर्ड, दे आर नॉट रिस्पेक्टेड एट होम, और उनकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लिया जाता है. कि भाई किसी ने बोला कि मेरे चक्कर आ रहा है, मेरे पैल्पिटेशन हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, मुझे गर्मी एकदम से लग रही है, तो फिर उसको बोला जाएगा अरे तुम्हें तो होता ही रहता है, चलो लेट जाओ, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा. तो ये हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, लेकिन हो सकता है वो सीरियस भी हो. तो उसको एक बार सुनो, तो ये झेलते झेलते देन शी स्टॉप्स कंप्लेनिंग, शी वोंट टेल यू अनटिल अनलेस कि बिल्कुल ही जान पे बन जाएगी, तब आपको खुद ही लगेगा कि क्या हो गया इसको. सो दिस इज वन थिंग वी शुड गेट दिस चेंज्ड. ये नहीं अच्छा लगता है. women should come out and they should talk about themselves. इवन ये जो अपना पीरियड से लेके है या Period सेक्सुअल से हेल्थ लेके के ऊपर, कुछ पीपल भी, डोंट टॉक हाँ. अबाउट इट इन ओपन. यस सेक्सुअल हेल्थ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा उसको मतलब छुपाया जाता है. कि तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉर्मल. इट इज़ अ नॉर्मल थिंग. Every woman faces problems during her reproductive age and even after menopause. बहुत सारी problems होती हैं ladies को. उसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर उसको ठीक नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ये मेरे वाले पे सुनेंगे तो बोलेंगे कैसे बात की तूने उसके बारे में. गायनेकोलॉजिस्ट से बात करोगे तो आप कुछ भी बात कर सकते हो. नहीं, बिकॉज हमारे इसमें इवन पीरियड्स के बारे में द डैड्स आर नॉट अलाउड टू नो, द ब्रदर्स आर नॉट अलाउड टू नो, और फिर बने लड़कों को नहीं बोलना होता है. एकदम छुपा छुपा के, लाइक हमारा वैसे ही था. नाउ इट इज, आई हैव मेड इट श्योर इट्स ओपन. अब तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग. एंड या अभी तो छोटे छोटे बच्चों के जैसे 9th और 10th ग्रेडर्स हैं, इवन दे नो कि हाँ भाई इसको प्रॉब्लम हो रही है. दे विल टेल इन द क्लास कि क्यों जा रहे हो नर्स के पास, तो वो बता के जाते हैं. एंड देन द अदर डे द सब पूछते हैं आई यू ओके, तो इसलिए पता चल ही जाता है क्या. तो विच इज समथिंग गुड. अभी वो एक चीज, आई लव दैट. It is good unless until it is not taken in a different way, but of course you should be open about it and you should discuss it. Yeah. So we move forward. Next wala question: how important is regular screening like Pap smear या mammograms, and how can we encourage more women to prioritize them? सो एनकरेजमेंट तो हम लोग आजकल खूब करते हैं थ्रू द अवेयरनेस प्रोग्राम्स. के ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का चलता है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का चलता है. तो हम लोग फ्री कैंप्स भी लगाते हैं, और हम लेडीज़ को फ्री कंसल्टेशन देते हैं. ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है वो बताते हैं. और जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है उसके बारे में भी जब वो एक उसका मंथ आता है, या फिर अदरवाइज भी क्लिनिक्स में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स के से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये करानी चाहिए. कि आपको जैसे आप 21 साल के हैं, 21 साल से लेके 30 साल तक आपको कराना ही कराना चाहिए एवरी 3 years. उसके बाद आपको ईयरली कराना चाहिए. तो ये है. और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो एटलीस्ट आप अपना HPV का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं. वो तो आप एज अर्ली एज 9 to 11 years शुरू कर सकते हैं बच्चियों में. इवन लड़कों को लगाना चाहिए HPV वैक्सीन, बिकॉज ये तो इन्फेक्शन ऐसा है जो कंटेजियस है. लड़कों से लड़कियों को जाता ही जाता है, या लड़कियों से लड़कों को जाएगा. तो ऑब्वियसली दोनों को, लड़के लड़कियां दोनों को HPV वैक्सीन लगवानी ही चाहिए. इसकी 3 डोजेज होती हैं और डॉक्टर आपको बताएगा कि कब कब आना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है. इट कैन बी कॉट बाय यूजिंग अ शेयर्ड प्लेस ऑल्सो, जैसे स्विमिंग पूल है या जैसे शावरिंग प्लेसेस हैं. तो ये हो जाता है. और इसका सिम्टम सबसे खतरनाक होता है, वॉट्स आ जाते हैं तो जेनाइटल एरियाज में या मुंह में या कहीं पे भी आ सकते हैं. ओके, ऑलराइट. और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का जो है वो तो हम लोग पूरा प्रॉपर बताते हैं कि भाई आप सेल्फ कैसे करो, और उसके बाद जब आप ईयरली करा रहे हो, अपना एनुअली चेकअप करा रहे हो, तो आप एटलीस्ट एक मैमोग्राफ कराओ या फिर एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का कराओ. ओके, ऑलराइट. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, सो विच मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स आर बेटर?
पैड्स, पीरियड पैंटीज या फिर मेंस्ट्रुअल ये कप्स? कैसे कैसे सवाल है? अब बताएं, बिकॉज मेंस्ट्रुअल कप्स को लेके बहुत सारा स्टिग्मा है उसको लेके, इवन आई एम नॉट येट रेडी फॉर दैट, लेकिन देयर आर मेनी हु हैव सेड दैट इट इज गुड, इट इज कन्वीनियंट एंड इट शुड बी टेकन, इट्स हाइजीनिक एज वेल, सो व्हाट डू यू रेकमेंड फॉर पीपल? Well, it totally depends on their comfort. ओके, Totally. चाहे आप menstrual cup लगाओ, आप चाहे pads लगाओ, but you have to maintain your hygiene. That is important. आपको Okay. change करना है frequently और आपको clean रखना है अपने area को, because otherwise तो फिर चाहे आप कुछ जैसे भी लगाओ आपका वो इन्फेक्शन तो किसी तरह से हो ही ओके, इट इज सकता है. मोर ऑफ हाइजीन वाला, ऐसे It कुछ is नहीं कि more- यही इम्पोर्टेंट नहीं बेटर से है कुछ. नहीं नहीं, it is more of hygiene and comfort. बिकॉज इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि यही बेटर है, इसी को यूज करो करके. नहीं नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. कुछ भी ऐसा नहीं है. वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो होगी, आपका ब्लड है वो बाहर आएगा. ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट वन ये है, सबको हो जाता है, जैसे PCOS है. इज देयर एनी सेट पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट फॉर PCOS? नो, देयर इज़ नो लाइक वो मैजिकल एल्गोरिथम के ये ट्रीटमेंट देंगे तभी ये ठीक हो जाएगा. अगेन इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस, फूड, और हम लोग की वो फिजिकल एक्टिविटी कम होना, या इमोशनल ट्रॉमा, ये सब चीज़ों से ये emotional trauma also plays a vital role. yes, very important role in PCOS, and these patients are very sensitive. There is no set pattern. हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो हम टारगेट करते हैं कि हाँ ये PCOS को अच्छा करेगी, लेकिन वी हैव टू टॉक टू द पेशेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ हर गोल. वो उस वक्त क्या चाह रही है, वेदर शी वांट्स टू हैव अ बेबी, वेदर शी वांट्स टू जस्ट रेगुलराइज हर पीरियड्स और व्हाट. सो वो टारगेट करके फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर अ सेट ऑफ मेडिसिन्स विच वी प्रिस्क्राइब फॉर PCOS. Okay. So, why should people come to you? Why should people come to Dr. Sana? Oh, well, people should come to me because I listen, and what else? When they come to me, then only then they can know that they should come to me again. And what are the problems that you solve? I solve all gynec problems. I try to solve as much as I can, and उसके बाद जो हाथ से बाहर होता है तो obviously वो हमारे gynec में भी expert areas हैं तो we send there. recommend. And in whatever profession you are, I believe that asking for help is always a good thing. Yes. You, instead of putting the patient's life or health at stake, if you are not sure of what you're doing, please ask your senior or send to the expert. Perfect. And we have a round called Myths round, but before that, you're doing well, by ये the way. सब मेडिकल ही क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं है. हाँ? सब मेडिकल वाले हैं. हाँ. चलो. तो वो आएगा वहाँ पे. उसके पहले we'll have this, and you're doing so well, by the way. अच्छा, thank you आपको so टेक्स much. की ज़रूरत थी. तो ये पहले any message that you would like to give to women out there? Oh, of course. मेरे को बताएं, इनको definitely. बताएं कि क्या करना चाहिए इन्होंने, या क्या मैसेज देना चाहती हैं आप उनको. First and very important, please do not negotiate on your respect. वो unnegotiable है topic. Don't let anyone disrespect you. Take care of yourself. होते हैं लोग होते हैं आसपास आपका ध्यान रखने के लिए, but you are the one who knows कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या changes हो रहे हैं, या where you need help. So please go out, consult your doctor, your friends, however help you need. Go out and take care of yourself, and never feel guilty. Yeah. Don't feel guilt ke if I'm taking some time out for myself, then I become a bad mom, or I become a bad wife, or bad whatever. No. If you're not feeling good, you're not happy, then it reflects on everything you're doing. On your work, on your face, on your skin. हाँ ना. No wonder she's amazing. Okay, so we have this next round, the last round called the myths bursting round. We have two flashcards here which we'll be giving. It's called the Hyderabadi Baigan round. Oh, wow. Okay. आज लखनवी डॉक्टर को हम हैदराबादी बैगन दिखाएंगे. मेरे कार्ड्स घर में रह गए तो मैंने लिखे हैं इस पे. बैगन इज फॉर नो, इट्स अ स्लैंग फॉर Yeah, नो. I got it. And दूसरा is sahich. Yeah, Okay, so sahich you'll and have to show it baigan. to the camera, whichever myth we are going to burst, तो उसके हिसाब से. Okay, सबसे पहला. Ready, steady, go. So
Looking at the belly during the pregnancy, you can determine the gender of the child. Began. हमारे से आयशा तेरा पेट नीचे कहाँ को है, तेरी बाई बच्ची पैदा होती है इस बार. तो इट्स अ बैगन गाइस. मेरी नानी एकदम फेंट हो जाएंगी, क्या क्या हमारी बेइज्जती कर रही बच्ची करके. नेक्स्ट, ईटिंग स्पेसिफिक फूड कैन डिटरमाइन द बेबीज जेंडर. बेगन. हाँ, ये बार क्रेविंग इसको आमा के होते हैं. आमा मतलब मर्द बच्चा पैदा होता. नहीं क्रेविंग्स होती हैं, डेफिनेटली क्रेविंग्स होती gender हैं, बताता है बट वो? जेंडर नहीं बताता. बाबा हम लोग को नहीं बताता, पता नहीं बड़े लोगों को बता देता हो, पता नहीं. नेक्स्ट वन, women can swim or exercise during their period. ओह ओके. women can swim. सहीच? सही है. वो पानी में वाले ये नहीं कर सकते वो लोग फिर? सही है. आप मेंस्ट्रुअल कप लगा के स्विमिंग करो, आप टैम्पॉन लगा के स्विमिंग करो, आप देखो कि आप कहीं और अनहाइजीन नहीं फैला रहे हो. इफ यू आर कंफर्टेबल डू इट. ओके, सो दैट कैन बी डन. ओके, नेक्स्ट वाला जो है, बर्थ कंट्रोल कॉजेज इनफर्टिलिटी इन लॉन्ग टर्म. बैगन. बैगन नहीं वही. नहीं मतलब इनफर्टिलिटी नहीं कॉज नहीं cause करता है, करता ना बिल्कुल वो, नहीं it's a कॉज myth करता है. again. इट्स अ मिथ, एब्सोल्युटली. आप जब बंद करते हो फर्टिलिटी दिस ओसीपीज लेना, तो आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है. ओके. बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ना हमारे पास, जैसे हमारे पास इंजेक्टेबल्स हैं, या हमारे पास वो इम्प्लानॉन्स हम लोग लगाते हैं, या आईयूडी लगाते हैं. इन सब को जैसे आप निकालते हो तो टाइम पीरियड होता है, आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है. ओके, नेक्स्ट वन. कुछ शैतानी है. आयशा के शक्ल से लग रहा है. You must have been a mischievous kid for sure. I can see that. While I was writing this, I had a tough time. Certain sexual positions can increase the chances of conception. वो बाहर चला जाएगा. Faji, close your ears. Is it true? No, actually. No, no. Okay. I don't want to elaborate that. Don't. Next one. Women cannot conceive once they hit menopause. Yeah. सही है. दिस इज सही. ऐसा कोई चांस हुआ है? मीनोपॉज के बाद देखो, आपका एक सर्टेन एज होती है जब आपके ओवरीज में जो एग्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है. तो इवन आफ्टर 40 से 45 के बीच में मीनोपॉज हिट करता है. तो approximate age is 51. Okay. So after that you have to, if you want to get pregnant, you have to number one get your AMH, जो कि determine करता है कि आपकी ovaries में कितने eggs बचे हैं और वो अच्छे हैं कि नहीं है. Okay. And obviously male factor will determine together. तो ये मेनोपॉज हो गया, दैट मीन्स आपका रिप्रोडक्टिव फंक्शन खत्म हो गया. तो फिर तो नहीं हो सकता. ओके, कहीं हुए ऐसे चांसेस? आई हैव सीन मेनोपॉज के बाद में भी? देयर आर स्टडीज, और वो जो टिकटॉक पे लोग अपनी स्टोरीज डालते रहते हैं, तो दे हैव क्लेम्ड दैट उनको मेनोपॉज हो गया था एंड दे बिकम प्रेग्नेंट अगेन विद मे बी IVF एंड ऑल, जो भी वो उन्होंने कराया. So miracles can happen. Yeah, miracles can But happen. usually वो No, नहीं होता मेनोपॉज के बाद. So I think we are towards the end of this myths round. Dr. Sana is at relief. She's like, wow, क्या questions पूछे थे. नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो कितना कोई परेशान बात हो नहीं रहा है, है. फाजी वो छोटा बच्चा है वैसे. हाँ, छोटे He's 23. बच्चे को Sexual बहुत education is important, फाजी. बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आज इसको. आज ये जाके ये अपनी अपनी बीवी गर्लफ्रेंड को को बताएगा बताएगा. बाद में. गर्लफ्रेंड है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अయ్यो, ये बेचारा इतना काम करता है, उसको गर्लफ्रेंड बनाने टाइम अरे नहीं है. आपको बेवकूफ बना रहा है. मेको बना रहा है. Thank you so much, Dr. Sana, for coming. It Thank was you a so much, pleasure. Aisha. Yeah. यो जो awkwardness थी मेरी पूरी निकाल दी, और मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए ना कि आप भी पूरे पूछ लिए. So thank you so much for answering my questions, even though Most some of them were welcome. very silly, but they, this is No, something. not at all. It's Silly a taboo नहीं. outside. Yeah. But I'm glad you addressed it. Yes, it is not silly. That is what I've been saying कि कोई क्वेश्चन सिली नहीं है. आप बिना हेजिटेशन के अपने गायनिक से स्पेशली जो भी है इशू वो पूछो. डोंट थिंक कि मैं पूछूंगी तो मैं क्या लगूंगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay. आप पूछोगे तो आप अच्छे ही लगोगे कि एटलीस्ट तुमने पूछा तो. पूछा तो ना. All right. So let's wrap it up here. Thank you so much, everyone, for watching. That's Aisha Sheikh from the podcast Aisha with Aisha. And special thanks to all our partners, AMG Digitech Solution, your one-stop solution for all your printing, designing, digital marketing needs. Our studio partners, Procast Studio Dubai, and our travel partner, Takeoff Tours. That's Aisha Sheikh signing off.